کاش کہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔ میں اپنی بھتیجی کی موت کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اس کے لیے موت کو ایک حسین و جمیل پیکر میں خود اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ حالات اتنے پر اسرار، اتنے عجیب اور دہشت انگیز ہیں کہ تم یقین نہ کرو گے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے۔ باخدا مجھ جیسا احمق انسان روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ سمجھ سکا۔ میری پیاری لڑکی کا اس حسین بلا نے سارا خون چوس لیا اور میں دم تک نہ مار سکا۔ کاش کہ مجھے احساس ہو جاتا۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری کارمیلا ویمپائر ایج، ایپیسوڈ نمبر 3۔ ارے بیٹی کیا بتاؤں، میں تو اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی۔ باخدا میری اتنی عمر ہونے کو آئی، سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں ایک سے ایک حسین دیکھی ہوں گی، لیکن ایسی خوبصورت لڑکی آج تک نظر نہ آئی۔ جنت کی حور ہے حور، بلکہ حوریں بھی اسے دیکھ کر شرما جائیں۔ کہنے کو تو تم بھی بہت خوبصورت ہو، لیکن اس لڑکی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تصویر ہے تصویر، آواز ایسی پیاری جیسے جل ترنگ بج رہا ہو، اور باتیں اتنی بھولی بھالی کہ بیان سے باہر۔ میرا بس چلے تو اسے یہاں سے جانے ہی نہ دوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں رشک کے جذبات سے اپنے آپ کو بچا نہ سکی۔ مادام لا فولٹن نے ان سب خوبیوں کی تائید کی جو پیری ڈان نے بیان کی تھی۔ دفتن والد نے کہا، یقیناً یہ بچی ان تمام خوبیوں کی مالک ہے جو تم نے بیان کی، لیکن کیا تم نے محسوس نہ کیا اس گاڑی میں اس لڑکی اور اس کی ماں کے علاوہ ایک عورت اور بھی تھی، بالکل سیاہ چہرے والی، جو آخری وقت تک گاڑی سے باہر نہ آئی؟ میں نے چونک کر والد کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو انہوں نے بھی اس جشن کو دیکھ لیا تھا۔ اب معلوم ہوا وہ میرا وہم نہ تھا۔ بلا شبہ ایک ایسی عورت گاڑی کے اندر موجود تھی۔ دونوں خادماؤں نے نفی میں گردن ہلائی۔ والد ان کے بیان پر مایوس ہو گئے، مگر جب میں نے انہیں بتایا واقعی اس گاڑی میں ایک عورت اس حلیے کی بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا، بہت خوب، تم نے بھی اسے دیکھا تھا۔ سوال یہ ہے وہ عورت کون تھی اور گاڑی سے باہر کیوں نہ آئی؟ اس کا جواب ہمیں یہی لڑکی دے سکتی ہے۔ میں تو ان کے کوچبان اور گھڑ سواروں کو دیکھ کر ڈری تھی، مادام لا فولٹن نے کہا۔ خدا رحم کرے، وہ کسی اور ہی دنیا کے دکھائی دیتے تھے۔ کیسے پیلے پیلے چہرے، ان کے اور ہاتھ پاؤں گویا لکڑی کے بنے ہوں۔ جب وہ حرکت کرتے تو ایسی مکروہ آواز آتی تھی جیسے کوئلے چٹک رہے ہوں۔ ہاں، یہ بات میں نے بھی دیکھی، والد نے کہا، اور وہ سب کے سب اس خاتون سے ڈرتے اور سہمے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان کی ٹانگیں خوف سے لرزتی تھیں، اور تو اور میں نے ان کے سیاہ گھوڑے دیکھے، وہ بھی دہشت سے کانپ رہے تھے۔ اگر یہ موسم سردیوں کا ہوتا تو میں خیال کرتا کہ ان کے کانپنے کی وجہ سردی ہے، مگر وہ یک لخت چپ ہو گئے اور انہوں نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے ہم سب کچھ اس لڑکی سے پوچھ لیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، اور اس کی ماں کو آخر زندگی اور موت کا کون سا مرحلہ درپیش ہے، میں نے کہا۔ والد یہ سن کر مسکرائے اور گردن ہلا کر بولے، اور میرا خیال ہے لڑکی ہمیں کچھ نہ بتا سکے گی۔ میرا دھیان فوراً اس پر اسرار گفتگو کی طرف چلا گیا جو رخصت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس خاتون نے والد کو ایک طرف لے جا کر کی تھی۔ یقیناً وہ ان کے کسی راز سے آگاہ کیے گئے ہیں اور شاید ہمیں بتانا پسند نہ کریں، مگر پوچھ لینے میں آخر حرج ہی کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے کا آغاز کیا۔
उस औरत ने आपको अलग ले जाकर सरगोशी में क्या कहा था? वालिद के लबों पर एक बार फिर मैनी खेज तबस्सुम नमूदार हुआ और उन्होंने कहा, वो कहती थी आप मुझसे वादा करें हमारे बारे में मेरी लड़की से कोई सवाल ना करेंगे, और अगर आपने कोई सवाल किया भी तो यकीन रखिए वो जवाब में एक हरफ भी जुबान से ना निकालेगी। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया है। वालिद एक लम्हे के लिए रुक गए। कहा, गालबन उसने बेहोश लड़की के कान में यही बात की थी। तज्जुब है, मैंने कहा। आखिर बेहोश लड़की से कुछ कहने का क्या फायदा? हमें इस बहस में पड़ने की जरूरत ही क्या है? वालिद ने कहा, हमें उसके भेद से आगाह होने का शौक नहीं, और ना मैं उस लड़की से कुछ पूछने की इजाजत दूंगा। हर फर्द खूब गौर से सुन ले कि लड़की से उसके या उसकी माँ के बारे में कोई जिरा ना की जाए। हाँ, वो खुद अपनी मर्जी से कुछ बता दे तो ठीक है। मुझे उस लड़की को देखने और उससे बातें करने का इतना इश्तियाक था कि नींद भी गायब हो गई, वरना रात का खाना खा लेने के बाद मैं फौरन सो जाने की आदी थी। डिनर रात के 9 बजे खाया गया। इस दौरान मैं मादाम पेरिडॉन 2 मरतबा मुअज़्ज़ज़ मेहमान के कमरे में गईं और दोनों मरतबा वापस आन कर बताया कि वो गहरी नींद सो रही है। खाने के बाद देर तक कहवे का दौर चलता रहा और इधर उधर की बातें होती रहीं। सबको अब उस नौकर का इंतज़ार था जिससे डॉक्टर लाने के लिए भेजा गया था। रात के ठीक 1 बजे डॉक्टर और नौकर किले में दाखिल हुए। वालिद ने मुख्तसर अल्फाज में सारा वाक़या बयान किया और उनको लेकर खुद उस कमरे में गए। मुझे उस वक़्त भी जाने की इजाज़त ना मिली। आधे घंटे बाद वालिद वापस हुए। डॉक्टर ने ऐलान किया, मरीज़ा कतई सेहतमंद है, उसे कोई अंदरूनी और बैरूनी चोट नहीं लगी, उसकी नब्ज़ ठीक चल रही है, सांस की आमदोरफ्त भी सही है, उसे सिर्फ अपनी माँ से जुदा होने का सदमा है और वो ये सदमा बर्दाश्त कर लेगी। 3 माह की मुद्दत कुछ ज़्यादा नहीं। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे इस वक्त मिल सकती हूँ? मैंने पूछा। हाँ हाँ ज़रूर, तुम्हें उससे फ़ौरन मिलना चाहिए। वो तुम्हारी हम उम्र है और तुम्ही जैसी हसीन, यकीनन वो तुम्हें देख कर बेहद खुश होगी। मगर देखो तो आधी रात जा चुकी है, इस वक्त मिलना गैर मुनासिब होगा। सुबह, वालिद ने कहना शुरू किया, मगर अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मजीद कुछ कहे सुने बगैर मैं दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ी और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे की तरफ चली जिसमें वो आराम कर रही थी। 1 सानिया दरवाजे पर रुककर मैंने अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त किया, फिर दरवाजे पर उंगली से दस्तक दी। आइए। अंदर से एक दिल फरेब आवाज़ आई और मैं आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे में चली गई। वो मसहरी पर पीठ मोड़े बैठी थी। उसके लंबे घने स्याह बाल पूरी कमर छुपाए हुए थे। उसका स्याह गाउन गर्दन तक लिपटा हुआ था। कमरे में 2 सफ़ेद मोमी शमें रोशन थी। मेरे कदमों की आहट पाकर उसने अपनी लंबी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। 2 बड़ी गहरी स्याह चमकदार आंखें मुझे घूर रही थी। मेरी उसकी निगाहें चार हुईं। उसकी हसीन और जमील सूरत देखते ही मुझ पर सकते का आलम तारी हो गया। मैं पत्थर के बेजान मुजस्मे की मानद अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई और फटी फटी नजरों से उसे तकने लगी। वही चेहरा, वही नाक नक्शा, वही लिबास, वही सुर्ख सुर्ख होंठ, वही नोकीले सफ़ेद दांत, वही तबस्सुम और वही जिस्म के पार हो जाने वाली सहर अंगेज नजरें। ये वही लड़की थी जिसे बरसों पहले अपने बचपन में मैंने आधी रात को अपने बिस्तर के करीब खड़े पाया था। इस तस्वर के साथ ही धड़ाम से गच खाकर गिरी और गहरी तारीकी में डूबती चली गई। कारमीला, उसकी आंखें अंगारों की मानद दहक रही थी। फिर उसके होंठ खिले और जब वो मेरी गर्दन का बोसा लेने को झुकी तो उसके लंबे नोकीले सफ़ेद दांत बारीक सुइयों की मानद मेरी गर्दन में चुभे।
दर्द की हल्की सी चीख मेरे मुंह से निकली और फिर मैं बेहोश सी होती चली गई। कारमिला दस्ते कुदरत का नादर और बेमिसाल शाहकार थी। उसका जिस्म जैसे नूर के सांचे में ढाला गया था। आज़ा इतने मुतनासिब और नाजुक जैसे फूल की पंखड़ी। उसकी आवाज़ में एक जादू, तरन्नुम का जादू। जब वो बोलती तो यूं लगता जैसे दूर, बहुत दूर किसी माबद में सुबह सादक की घंटियां बज रही हों। उसकी बड़ी बड़ी गजाली आंखों में बला की तेजी और चमक थी। जू जू सूरज मगरब में झुकता चला गया, कारमिला की आंखों में सुर्खी झलकने लगती और उसके बेहद खूबसूरत तरशे हुए याकुबती होंठ खूने कबूतर की मानद सुर्ख थे और यह सुर्खी मसनूई नहीं, असली थी। उसके दांत गैर मामूली तौर पर लंबे, नोकीले और सफ़ेद, और जब वो मुस्कुराती तो उन खूबसूरत दांतों में बिजलियां सी लहराती नजर आती। मैंने उसे पहली मर्तबा देखा तो दहशत से गच खाकर गिर पड़ी। ये तो वही लड़की है जिसे 12 साल कबल मैंने आधी रात को अपने बिस्तर के करीब खड़े पाया था, और उस वक़्त से लेकर अब तक एक लम्हे के लिए भी उसका ये दिलफरेब चेहरा मेरे हाफ़ज़े की लो से महू ना हुआ था। चंद लम्हे बाद मैं खुद ही होश में आ गई। क्या देखती हूँ, उसका हसीन चेहरा मुझ पर झुका हुआ है। फिर एक मुतरन्नम और दिलकश आवाज़ मेरे कानों में हलकोरे लेने लगी, प्यारी बहन उठो, क्या तुम मुझसे देखकर डर गईं? उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक अजीब सी सनसनी मेरे जिस्म के रुएं रुएं में दौड़ गई। मैं बिलाशुबा उस वक़्त कांप रही थी और यूं लगता था जैसे मेरी कुव्वते गोयाई सलब हो गई हो। शायद आज फिर 12 साल पहले का वही बेहानक ख्वाब देख रही थी। उफ, कैसी हैरत अंगेज बात है, उसने हंसकर कहा। ठीक 12 बरस कबल मैंने तुम्हारी सूरत ख्वाब में देखी थी और जब से अब तक एक लहजे के लिए भी तुम्हारा चेहरा मेरे तसव्वुर से गायब ना हुआ। ये कलमा सुनकर मैं और खौफजदा हो गई। खुदा रहम करे, बिल्कुल यही बात तो मैं सोच रही थी। और फिर यक लख्त मेरी गुमशुदा कुव्वते गोयाई वापस लौट आई। मैंने कहा, मुझे भी तजब है कि आज से 12 बरस पहले जब मैं छोटी सी थी, आधी रात के बाद अपनी ख्वाबगाह में मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आया था, लेकिन वह ख्वाब नहीं था। मैंने हकीकत में तुम्हें अपने बिस्तर के करीब खड़े देखा और फिर तुम मेरे बराबर में लेट गई थी, और अब मैं तुम्हें दोबारा देख रही हूं। खुदा की पनाह, ये कैसा अजीब वाकया है। उसने चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। उसकी नजरों की ताब ना लाकर मैंने गर्दन झुका ली और मेरा दिल जैसे बैठने लगा। दफतन उसने अपना हाथ मेरे शाने पर रखा और मुस्कुराने लगी। उस वक़्त उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था और सुर्ख सुर्ख लबों और मोती की तरह सफ़ेद दांतों से जैसे फूल बरस रहे हों। हाँ, कैसा अजीब वाकया है, उसने कहा। मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा और तुमने मुझे बेदारी में, और अब किस्मत ने मुझे तुम्हारे पास पहुंचा दिया। यूं कहो तुम्हारी कशिश मुझे यहाँ खींच लाई। आह, तुम कितनी खूबसूरत हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लारा है, और तुम्हारा? मुझे कारमिला कहते हैं। क्या तुम्हें यह नाम पसंद आया? हाँ, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी हो कारमिला। उसके तरोताज़ा और शादाब रुखसार मजीद सुर्ख हो गए और उसने मोहब्बत से मेरा हाथ दबाया। तुम भी कुछ कम खूबसूरत नहीं हो लारा प्यारी। आओ हम तुम दोनों पक्की सहेलियां बन जाएं। मैं इन दिनों खासी शर्मीली थी और शायद उसकी वजह वो तन्हाई थी जिसमें मेरी परवरिश हुई थी। कारमिला की ये बात सुनकर मैं इस तरह शर्माई जैसे किसी तरहदार नौजवान ने मुझसे शादी की दरख्वास्त कर डाली हो। हम तो पहले ही सहेलियां हैं, क्या हमारी दोस्ती 12 साल पुरानी नहीं? मैंने शर्माते हुए कहा और कारमिला भी हंस पड़ी। उसने मुझे गले से लगाया और प्यार करने लगी। उसके जिस्म से अजीब सहर अंगेज खुशबू उठ रही थी
जिसने मुझे मदहोश कर दिया। उस आलम में मैंने देखा कि उसकी आंखें अंगारों की मानद दहक रही हैं और फिर उसके होंठ खिले, और जब वो मेरी गर्दन का बोसा लेने को झुकी तो उसके लंबे नुकीले सफ़ेद दांत बारीक सुइयों की मानद मेरी गर्दन में चुभे। दर्द की हल्की सी चीख मेरे मुंह से निकली और कार्मिला ने फौरन अपने होंठ गर्दन से हटा लिए। दोनों हाथों से मेरा मुंह ऊपर उठाया और आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें अपना 12 साल पुराना वो ख्वाब सुनाती हूँ जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं अब तुम्हें देख रही हूँ। उस वक़्त मेरी उम्र 6 साल की थी और यकीनन जब तुमने मुझे देखा तो उन दिनों तुम्हारी उम्र भी 6-7 साल की होगी। गोया हम दोनों कम सिन थीं। खैर, एक रात सोते सोते मेरी आंख खुली और मैंने अपने आप को अजनबी जगह देखकर हैरान रह गई। ये वो कमरा तो नहीं था जहां मेरी वालदा मुझे सुलाया करती थी। मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और गौर से अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। हर तरफ गहरी तारीकी और खौफनाक सन्नाटा। मैंने अपने आप को वसीओ अरीज कमरे में पाया जिसमें तरह तरह का सामान खचाखच भरा था। लकड़ी की मेज़ें, कुर्सियां, पलंग, अलमारियां और पता नहीं क्या क्या। खिड़कियों पर स्याह रंग के बड़े बड़े पर्दे लटके हुए थे और दरवाजे खुले हुए थे। दफतन हवा के झोंकों से एक पर्दा हिला और मैंने देखा सामने एक घना जंगल है जिसमें कुछ फासले पर चिराग जल रहा है। मुझे उस वक़्त बड़ा खौफ महसूस हुआ और ये खौफ एक अजनबी जगह, अंधेरे और तन्हाई का था। अब मैं अंधेरे में बखूबी देखने लगी। मेरे दाएं बाएं 2 पलंग पड़े थे जिन पर बिस्तर बिछे हुए थे, मगर उन पर सोने वाला कोई न था। मेरे सरहाने लोहे का एक क्षमादान धरा था जिसमें मोमबत्तियां लगी थी, मगर ये सब की सब बुझ चुकी थी। यकायक मैंने अजीब सी आवाज़ कमरे में सुनी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। मैंने खौफ से चीखने की कोशिश की, लेकिन हलक से आवाज़ ही ना निकली। और फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें। कार्मिला एक लम्हे के लिए रुकी और मेरी तरफ देख कर मुस्कुराने लगी। मैं चुपचाप उसके होंठ तके जा रही थी। तुम गर्दन से पैरों तक स्याह लिबादे में लिपटी हुई थी। तुम्हारे सुनहरे बाल खिले थे और तुम्हारी नीली आंखों में मोहब्बत के कमल रोशन थे। तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर तुमने अपने दोनों बाजू आगे किए जैसे मुझे लिपटाना चाहती हो। मैं बेइख्तियार तुम्हारे दोनों बाजुओं में आ गई और फिर आंखें आप ही आप बंद हो गईं। शायद मैं गहरी नींद सो गई थी। यकलख्त चीखों की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि तुम मेरे बिस्तर पर बैठी बुरी तरह चीख रही हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं खौफजदा हो गई और बिस्तर से नीचे उतरी, और उसके बाद ऐसे लगा जैसे मैं बेहोश हो गई। दोबारा आंख खुली तो मैंने अपने आप को उसी ख्वाबगाह में पाया जहां मैं हमेशा सोया करती थी। मेरी वालदा मेरे सरहाने खड़ी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही थी और मेरे रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर ख्वाबगाह में आई थी। उस वक़्त से लेकर अब तक तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मैं नहीं भूली, और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि 12 साल कबल जिस लड़की को मैंने ख्वाब में देखा था, यकीनन वो तुम थी। कार्मिला अपना ख्वाब बयान कर रही थी और मैं हैरत के समुंदर में गोताए जन थी। उसका ख्वाब हूबहू वही था जो मैंने अपनी बेदारी में देखा था। फिर मैंने तफसील से पूरी बात सुनाई। वो बड़ी दिलचस्पी से सुनती और मुस्कुराती रही। जब मैं चुप हुई तो उसने मुझे गले से लगाते हुए कहा, ऐसे मालूम होता है कि कुदरत ने हम दोनों के साथ निहायत हसीन मजाक किया। बचपन ही से हमें एक दूसरे की ना सिर्फ शक्ल दिखा दी बल्कि आपस में मोहब्बत भी पैदा कर दी। प्यारी लारा, वादा करो कि तुम मुझसे जुदा ना होगी। मैंने वादा किया, और जब यही वादा उससे लेना चाहा तो वो एक लम्हे के लिए उदास हो गई। अभी मैं कोई वादा नहीं कर सकती,
میں اپنی ماں کے قبضے میں ہوں۔ وہ واپس آئے گی تب بتا سکوں گی ان کا کیا ارادہ ہے۔ بہرحال میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گی۔ کارمیلا نے سرد آہ بھری اور اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں بھی رونے لگی۔ کتنی ہی دیر ہم چپکے چپکے آنسو بہاتے رہے۔ دفتن جنگل میں سے کسی مرغ کے بولنے کی آواز آئی۔ کارمیلا چونک پڑی اور اس نے جلدی سے کہا، لارا بہن اب تم جاؤ، آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل ہوں گی۔ ارے معاف کرنا، مجھے باتوں باتوں میں پتہ نہ چلا کہ صبح ہونے والی ہے، میں نے اس کے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کی رائے ہے تمہارے کمرے میں ایک خادمہ کو سونا چاہیے، وہ غالباً باہر انتظار کر رہی ہے، تمہیں اس کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نہیں نہیں، کارمیلا نے گھبرا کر کہا، میں ہمیشہ سے اپنے کمرے میں تنہا سونے کی عادی ہوں، کسی دوسرے کی موجودگی میں مجھے نیند نہیں آتی، تاہم تمہاری اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ خادمہ سے کہو کہ وہ تکلیف نہ کرے، مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے گی، میں اندر سے ہمیشہ اپنا کمرہ متقفل کر کے سونے کی عادی ہوں۔ ایک بار ہمارے مکان میں ڈاکو گھس آئے تھے، تب سے ڈاکوؤں اور نقب زنوں کی ہیبت میرے دل پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری اس حرکت کا بالکل برا نہ مانو گی۔ قفل کی کنجی مجھے نظر آ رہی ہے، اب تم جاؤ، آرام کرو، تمہاری آنکھوں میں بھی نیند بھری ہوئی ہے، شب خیر۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ کارمیلا نے دروازہ بند کر لیا، پھر قفل میں کنجی گھومنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ باہر سیڑھیوں کے قریب مادام پیریڈون ایک کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے کمرے میں چلی جائیں، مہمان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے روز دوپہر کے بعد جب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا، کارمیلا اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ صبح ایک نوکر جب اس کا ناشتہ لے کر گیا تو کمرے کا دروازہ مقفل تھا۔ کارمیلا نے اس کی آمد سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا تھا، مگر وہ اپنے بستر پر نہ تھی، شاید برابر والے کمرے میں ہوگی یا غسل خانے میں۔ نوکر ناشتہ میز پر رکھ کر چلا آیا۔ دن کے اجالے میں کارمیلا کا حسن اور نکھر آیا تھا، جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی شخصیت میں بڑی کشش اور بڑا وقار تھا، چال شہزادیوں کی سی۔ ہمارے قلعے میں پالتو پرندوں کے علاوہ روسی نسل کے سفید کتوں کا ایک جوڑا بھی تھا۔ کارمیلا کو ان کتوں نے دیکھا تو وہیں دبا دبا کر ٹیاؤں ٹیاؤں کرتے پردے کے پیچھے جا چھپے۔ جب تک کارمیلا اس کمرے میں بیٹھی رہی، وہ ایک کونے میں دبکے رہے۔ والد ایک زمانے میں جنوبی افریقہ کی سیاحت کو گئے اور وہاں سے طرح طرح کے طوطے خرید لائے۔ ان میں میکاؤ نسل کے طوطوں کی ایک جوڑی بھی تھی۔ قد و قامت میں یہ طوطے چھوٹے موروں کے برابر تھے اور نہایت ذہین۔ گھر کے تمام افراد کو بے تکلف ان کے ناموں سے پکارتے اور گھنٹوں بولتے۔ میں نے کارمیلا سے کہا، آؤ تمہیں طوطے دکھاؤں۔ وہ مسکرائی اور میرے ساتھ چلتی ہوئی والد کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ آگے آگے اس بے تکلفی سے چلی جا رہی تھی جیسے اس قلعے کے ایک ایک چپے سے آگاہ اور برسوں سے یہاں رہ رہی ہو۔ میں نے اس وقت کارمیلا کی ان پر اصرار خاصیتوں پر غور نہ کیا، اور اب خیال آتا ہے کہ اگر میں اس وقت ان باتوں پر غور کرتی تو اس لرزہ خیز بربادی اور تباہی سے ہمارا قلعہ محفوظ ہو جاتا، جو کچھ عرصے کے بعد ہم پر نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک ہم عمر سہیلی پا کر سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ میں اول نظر میں کارمیلا پر فریفتہ ہو چکی تھی اور کسی قیمت پر نہ چاہتی تھی کہ یہ قلعے سے جائے۔ والد اپنے کمرے میں موجود تھے اور میز پر بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ طوطوں کی زور زور سے بولنے کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی تھیں۔ جو ہی ہم نے دروازے میں قدم رکھا، طوطوں نے لارا آ گئی، پیاری بیٹی آ گئی کے نعرے لگانے شروع کیے اور خوشی سے اپنے پنجرے میں رقص کرنے اور پھڑ پھڑانے لگے۔ مگر دوسرے ہی لمحے ان کی حالت میں عظیم تغیر رونما ہوا۔
वो एकदम साकतो शामत हो गए। उनकी कतरनी की तरह चलती हुई जुबानें बंद हो गईं और आंखों के गिर्द गर्दश करती हुई पुतलियां थम गईं। उन्होंने अपने फैले हुए बड़े बड़े पर सुकेल लिए और गर्दनें झुकाकर एक दूसरे के पीछे पनाह लेने की कोशिश करने लगे। तोतों की यकलख्त खामोश होते ही वालिद ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। फिर उनकी नज़र हम पर पड़ी। वह उठ खड़े हुए और हमें अंदर आने का इशारा किया। अब्बा, मैं अपनी सहेली की मुलाकात तोतों से कराने आई हूँ, मगर शायद उन्हें हमारा आना नागवार गुजरा है। ज़रा देखिए तो एकदम चुप हो गए हैं और अब हम में से नज़रें चुराए हुए हैं। वालिद ने पिंजरे में तोतों की हालत का गौर से जायज़ा लिया और हैरत के अजीब तासरात उनके चेहरे पर फैल गए। उन्होंने पिंजरे के करीब जाकर प्यार भरे अंदाज में उन्हें पुकारा, मगर उनकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई। वो उसी तरह डरे और सहमे हुए थे जैसे उन्होंने बिल्ली अपने करीब देख ली हो। वालिद ने हंसकर कहा, तअज्जुब है, अभी चंद लम्हे कबल ये तोते खुशी से चिल्ला रहे थे और तुम लोगों के आमद के साथ ही चुप हो गए। गालबन ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से शर्मा रहे हैं, चंद दिनों बाद मानूस हो जाएंगे। कारमिला ने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना कहा और मुस्कुराती रही। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और वालिद को सलाम करके कमरे से बाहर आ गई। उसके बाद उसका बाहर आना था कि तोतों के बोलने और बातें करने की आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। तुमने तो हमारे तोतों को डरा ही दिया कारमिला, मैंने मजाक में कहा, और यही हाल हमारे कुत्तों का हुआ। कहीं तुम हमें ही ना डराने लगना। वो कहका मारकर हंसी और आहिस्ता से कहा, ये सब तुम्हारा वहन है। भला मैं कुत्तों और तोतों को क्यों डराने लगी? क्या मैं कोई चुड़ैल हूँ या बदरूह? दिन का ये हिस्सा हमने किले में घूमते फिरते काट दिया। इस दौरान में 2 मरतबा मैंने पानी पिया और कुछ फल भी खाए, मगर इसरार के बावजूद कारमिला ने कोई चीज़ ना खाई, ना ही उसे प्यास लगी। वो कहती थी कि उसने सुबह अच्छी तरह से नाश्ता कर लिया है।